قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں جو ہمیں کرنی ہے وہ کون سی باتیں ہیں؟ یاد رکھیے، ہم نے کہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کل میدان کربلا میں کوئی کرامت آپ نے کیوں نہیں دکھائی؟ یہ سوال ہے میدان کربلا کو لے کر۔ میدان کربلا جواب میں آپ کے بہت قریبی جگہ سے دینے کی کوشش کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، ان کے نواسے پر پوتے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ لگتے۔ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین ہند تشریف لائے، اجمیر پہنچے، تو آپ پہ اس وقت کے راجا نے پانی بند کرا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے کرامت دکھلایا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک کٹورے میں مکمل انا ساگر کا پانی ایک کٹورے میں آ گیا۔ آخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، حضور کے نواسے ہیں، یہ ولی ہے، وہ ولی بناتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں اگر کسی پر ان کی نگاہ پڑ جائے تو وہ ولی ہی نہیں ولی گڑھ بن جائے۔ اتنے کمال کے مالک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل میدان کربلا میں کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ امام حسین کو کوئی کرامت دکھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چاہ کر بھی انچاہے میں اگر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑیوں کو زمین کربلا میں رگڑ دیتے تو نہ صرف وہ کربلا کی زمین پہ امام حسین کو کسی کرامت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر حضرت علی اصغر اپنی ایڑیوں کو بغیر چاہت کے رگڑ دیتے تو جو کربلا خون سے شرابور ہو گیا تھا، پورا کربلا کہیں نہ کہیں نہر فرات کی طرح پانی سے بالکل لبالب سمجھ میں آ جاتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر حضرت علی اصغر اپنی ایڑیوں کو رگڑ دیتے تو مکمل میدان کربلا پانی سے بھر جاتا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ نہ امام حسین نے کوئی کرامت دکھائی، نہ کسی اور فرد نے کوئی کرامت دکھائی، کوئی کرامت امام حسین نے نہیں دکھلائی۔ آخر کیوں؟ اگر خواجہ غریب نواز ایک حکم سے اپنے مرید کو بھیج کر انا ساگر کے پانی کو ایک کٹورے میں لا سکتے ہیں تو امام حسین کیا ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ ان پر 3 دن تک تمام اہل کنبہ پر پانی بند کر رکھا گیا؟ اگر امام حسین چاہتے تو نہر فرات کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کسی کٹورا کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ چاہتے تو ہتھیلی پہ نہر فرات خود آنے کو اپنے لیے مقدر سمجھتی، مگر یاد رکھو کہ امام حسین نے کوئی کرامت نہیں دکھلائی۔ ایسا کیوں کیا امام حسین نے؟ اس کی وجہ کیوں آئی؟ امام حسین کرامت دکھلا دیے ہوتے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی، امام حسین کرامت دکھائے ہوتے جنگ و جدال کی ضرورت ہی نہیں تھی، امام حسین کرامت دکھا دیے ہوتے کسی کی جان نہیں جاتی۔ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کرامت کیوں نہیں دکھلائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب سنو کہ قیامت تک آنے والی اس امت کو امام حسین کو اپنی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہے کہ کل کوئی بھی شخص، امام حسین جانتے تھے کہ یہ میرے نانا کی امت پر کوئی پہلی کربلا نہیں ہے، پتہ نہیں قیامت تک یہ امت جب تک رہے گی، یہ دین مصطفیٰ جب تک رہے گا، یہ شریعت مصطفیٰ لوگوں کے بیچ جب تک رہے گی، یہ قوانین مصطفیٰ لوگوں کے بیچ جب تک رہیں گے، یہ ضوابط شریعت لوگوں کے بیچ جب تک رہیں گے، پتہ نہیں کب مصطفیٰ کی امت پر کربلا واقع ہو، کب مصطفیٰ کی امت پر پانی بند ہو جائے، کب مصطفیٰ کی امت پر دانا بند ہو جائے۔ امام حسین کو پتا تھا یہ کوئی پہلی کربلا نہیں ہے، ابھی دنیا کی عمر بہت زیادہ ہے، بہت دنوں تک مسلمانوں کو جینا ہے، مسلمانوں پر یہ کوئی پہلی کربلا نہیں ہے، اس کے بعد بہت ساری ایسی کربلائیں ہو سکتی ہے، کئی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے، کئی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان پر پانی بند کر دیا جائے، دانا بند کر دیا جائے۔ اگر آج میں حسین ابن حیدر ہو کر، نبی کا نواسا ہو کر، اگر آج میں ایک صحابی رسول ہو کر، صاحب کرامت ہو کر، اگر آج میں نے کرامت دکھلا دی، اگر آج میں نے کرامت سے کام لے لیا اور کل میرے نبی کی کسی امت پر پانی بند کیا گیا، کسی قوم پر پانی بند کیا گیا اور اس قوم میں کوئی حسین نہ رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قوم اپنے آپس میں حسین کے نہ ہونے کو اپنے کلیجہ محسوستی رہے اور سوچتی رہے کہ کاش آج ہم میں کوئی حسین ہوتا جو کوئی کرامت دکھاتا اور ہمارے سامنے کوئی دانا آ جاتا، کوئی پانی آ جاتا، ہم بھوکے نہیں رہتے، ہمیں پیاس نہیں ستا، ہمیں بھوک پریشان نہیں کرتی۔ امام حسین جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کربلا میں کرامت دکھا کر کام لے لیا اور کل میرے نانا کی امت پر کسی بھی فرد پر کوئی دوسری کربلا واقع ہوتی ہے، کسی بھی انسان پر کبھی پانی بند کیا جاتا ہے یا دانا بند کیا جاتا ہے، اور آج میں اس کربلا میں اگر میں کرامت
करामत दिखाकर काम ले लेता हूं तो कल मेरे नबी की ये उम्मत, कल ये मेरे नबी की उम्मत कलेजा महसूस के रह जाएगी। काश हम में कोई अली का बेटा हुसैन होता जो आज करामत दिखाता, आज हमें पानी पीने को मिल जाता। हुसैन ने कोई करामत नहीं दिखलाई, डट के मुकाबला किया, जिसमें जिस्मानियत के साथ मुकाबला किया। ये मुकाबला क्यों किया? कयामत तक आने वाली हर उम्मत को यह दर्श देना था कि याद रखो, ऐ मेरे नाना की उम्मती, कभी भी, ऐ मेरे नाना की उम्मती, कभी भी तुम्हारे ऊपर करबला वाक़ हो जाए, कभी भी तुम्हारे ऊपर दाना पानी बंद हो जाए, कभी भी जालिम तुम्हें सताने लगे, कभी भी तुम्हारे सामने कोई दूसरा यजीद खड़ा हो जाए, तो याद रखना हुसैन आज करामत नहीं दिखा रहा है। तुम भी किसी करामत का इंतजार मत करना, तुम भी किसी मोजेज़े का तुम भी किसी करामत का इंतजार मत करना, तुम भी किसी मोजेज़े का इंतजार मत करना, तुम भी किसी वली का इंतजार मत करना, तुम किसी की आस या उम्मीद लगाए मत बैठे रहना। आज हुसैन जिस्मानियत के साथ मुकाबला करता है, अपनी ताकत से मुकाबला करता है। ऐ मेरे नाना के उम्मती, याद रखना अगर तुम पे कोई करबला वाक़ होती है तो तुम्हें किसी का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें इस मुकाबले को खुद, तुम्हें ऐसी ताकत का मुकाबला खुद करना है, तुम्हें ऐसे मरहले का मुकाबला खुद करना है, तुम्हें ऐसे वक्त का जवाब खुद देना है। ये जो इमाम हुसैन को एक दर्स देना था, यही वजह से, इसी वजह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई करामत नहीं दिखाई, नबी की उम्मत को बतला दिया तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई करबला वाक़ हो जाए, तुमको मुकाबला करना है, किसी की करामत का इंतजार नहीं करना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर चाहते, मैंने कहा नहीं इमाम हुसैन को चाहने की बात नहीं थी, सिर्फ हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर बेगैर चाहे भी अगर वो अपनी एड़ियों को मैदान करबला में रगड़ देते तो पूरा करबला पानी से भर जाता, मगर ऐसा नहीं चाहा, किसी ने नहीं। इमाम हुसैन ने कोई करामत नहीं दिखलाई। फिर मैं आपके सामने एक बात और रखूं, इमाम हुसैन और यजीद की लड़ाई कोई शख्सी लड़ाई नहीं थी, वो मिल्ली लड़ाई थी, कोई इंफरादी लड़ाई नहीं थी, वो इज्तिमाई और समाजी लड़ाई थी, कोई दुनियावी लड़ाई नहीं थी, वो दीनी लड़ाई थी, वो कोई खारजी लड़ाई नहीं थी, वो फिक्री लड़ाई थी, वो ज़हनी लड़ाई थी, वो एक समाज को लेकर लड़ाई थी, एक दीन को लेकर लड़ाई थी, एक मजहब को लेकर लड़ाई थी, कोई आपसी मामला नहीं था, किसी जमीन का झगड़ा नहीं था। यही वजह है जो हमने सवाल किया था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद हो गए। शिमर जिलजोशन जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया वो खड़ा था। दुनिया का सिस्टम यह है कि जो खड़ा रहे मैदान में वो जीत गया, जो लेट जाए वो हार गया। इमाम हुसैन तो शहीद हो गए थे, फिर भी इमाम हुसैन को कहते हैं कि इमाम हुसैन जीत गए। इस पर अकली दलील क्या है, नकली दलील क्या है, मैं आपके सामने जवाब रखूं। इमाम हुसैन लोगों की नजर में इमाम हुसैन शहीद हो गए, मगर शहीद होकर भी इमाम हुसैन ये जंग कैसे जीते? याद रखना यजीद का एक मिशन था, यजीद की एक सोच थी, यजीद की एक फिक्र थी। वो फिक्र क्या थी कि जो दीन मोहम्मद लेकर आए हैं, जो दीन मोहम्मद अरबी लेकर आए हैं, जो कवानीन मोहम्मद अरबी के दीन के हैं, जो ज़वाबित शरीयत मुस्तफ़ा के हैं, जो कवानीन कुरान के हैं, यजीद उन चीजों को बदलना चाहता था। इमाम हुसैन बदलने नहीं देना चाहते थे, यजीद उन चीजों में तहरीफ करना चाहता था। इमाम हुसैन तहरीफ होने नहीं देना चाहते थे, यजीद उन चीजों में तब्दीली लाना चाहता था, यजीद दीन मोहम्मदी को बदलना चाहता था। इमाम हुसैन बदलने न देना चाहते थे, यजीद शरीयत मुस्तफ़ा को पामाल करना चाहता था। इमाम हुसैन शरीयत मुस्तफ़ा की पामाली नहीं चाहते थे, यजीद कवानीन दीन को तब्दील करना चाहता था, कवानीन दीन में तब्दीली लाना चाहता था। इमाम हुसैन तब्दीली नहीं चाहते थे, यजीद कुरान में तहरीफ करना चाहता था। इमाम हुसैन कुरान की तहरीफ नहीं चाहते थे, यजीद ने माओ बहनों बेटियों के साथ निकाह को जायज करार दिया था। इमाम हुसैन उसका इनकार कर रहे थे, जो कुरान ने कहा वो हम कहेंगे, जो दीन मोहम्मद अरबी लेकर आए वो नबी का नवासा हुसैन कहते हैं कि हम इन चीजों को कभी नहीं होने देंगे। एक सोच की लड़ाई थी, एक फिक्र की लड़ाई थी, एक दीनी लड़ाई थी, एक मजहबी लड़ाई थी, एक मजहबी लड़ाई थी, एक समाजी लड़ाई थी, एक कहीं ना कहीं इमाम हुसैन की लड़ाई कोई शख्सी लड़ाई नहीं थी, कोई इंफरादी लड़ाई नहीं थी, कोई जाती लड़ाई नहीं थी। इमाम हुसैन की लड़ाई एक दीन को लेकर थी, इमाम हुसैन की लड़ाई एक फिक्र को लेकर थी, इमाम हुसैन की लड़ाई दीन के रसूल ज़वाबित को लेकर थी। इमाम हुसैन की लड़ाई वो 23 साल मुद्दत में कुरान उतरा, उस कुरान को लेकर लड़ाई थी। इमाम हुसैन उस कुरान की हिफाजत करना चाहते थे, उस दीन की हिफाजत करना चाहते थे। इमाम हुसैन दीन मतीन को आगे बढ़ाना चाहते थे, यजीद उस दीन को मिटाना चाहते थे। याद रखो, ये जवाब और मजीद करीब करने के लिए मैं आपके सामने रखूं। दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम आए, 313 मुरसलीन इज़ाम आए, सबके साथ एक
दीन आया, कोई दीन लेकर आए, तमाम अध्ययन एक एक करके खत्म हो गए। अगर खत्म ना भी हुए तो आज जो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहते हैं, या जो हजरत मूसा की दीन की बात करते हैं, वो वाकई मूसा का दीन आज नहीं रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन में तब्दीली, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में तब्दीली, हजरत नूह के दीन में तब्दीली, हजरत ईसा के दीन में तब्दीली, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के दीन में तब्दीली आ गई। ऐसा क्यों हुआ? आखिर वो दीन अपने मेयार पे बाकी क्यों नहीं रहे? वो जितने अध्ययन थे वो सब में तब्दीली क्यों आ गई? वो तमाम दीन मनसूख क्यों हो गए? उस दीन के मानने वाले आज क्यों नहीं नजर आते? अगर कोई है भी तो उस दीन में तहरीफ हो गई, उस शरीयत में तब्दीली आ गई, उस कानून में तब्दीली आ गई। ऐसा क्यों हुआ? वो तमाम अध्ययन क्यों बातिल हो गए? वो तमाम अध्ययन क्यों मनसूख हो गए? वो तमाम दीन क्यों खत्म हो गए? उसकी वजह सिर्फ यही कि उस दीन में कोई हुसैन इब्ने हैदर नहीं था, कोई हुसैन नहीं था जो दीन पर पहरा देता, कोई हुसैन नहीं था तो हजरत मूसा का दीन बदल गया, कोई हुसैन नहीं था हजरत ईसा का दीन बदल गया, कोई हुसैन नहीं था हजरत नूह का दीन बदला, कोई हुसैन नहीं था उस दीन में तो हजरत शीश का दीन बदला, कोई हुसैन नहीं था तो उन दीनों में तब्दीली आई। अब याद रखो ऐ यजीदियो, कान खोल कर सुन ले, तू मोहम्मद के दीन को बदलना अगर चाहता है कभी नहीं बदल सकता। अगर तू चाहता है यजीद कि मोहम्मद के दीन में कोई तब्दीली आ जाए, दीन के कवानीन में कोई तब्दीली आ जाए, कुरान में कोई तहरीफ आ जाए, शरीयत मुस्तफा की कोई पामाली कर जाओ, तुम कभी नहीं कर सकते। इस दीन को लाने वाले अगर मोहम्मद अरबी है तो उसका नवासा हुसैन अभी जिंदा है, इस दीन में तहरीफ कभी नहीं होने देगा। ये जो एक फिक्र थी, ये एक फिक्री लड़ाई थी कि दीन में तब्दीली नहीं होने देंगे। इमाम हुसैन की ये लड़ाई थी। इमाम हुसैन भले शहीद हो गए, इमाम हुसैन भले अहले कुंबा के साथ शहीद हो गए, मगर याद रखना क्या मुस्तफा का दीन बदला? नहीं बदला। क्या यजीद मुस्तफा के दीन को तहरीफ करने में कामयाब हुआ? नहीं हुआ। क्या कवानीन दीन बदले? नहीं बदले। क्या ज़वाबित शरीयत बदले? नहीं बदले। क्या दीन मुस्तफा में कोई तब्दीली आई? नहीं आई। क्या कुरान में कोई तहरीफ हुई? नहीं हुई। ये जो दीन में तब्दीली नहीं आई, ये जो शरीयत में तब्दीली नहीं आई, ये जो दीन में तब्दीली नहीं आई, ये जो कुरान में तहरीफ नहीं हुई, ये जो रसूल दीन में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई, ये इमाम हुसैन की फिक्र थी। ये इमाम हुसैन चाहते थे कि दीन में तब्दीली ना आए। यजीद चाहता था दीन में तब्दीली आए। अब चूंकि दीन में तब्दीली नहीं आई और कयामत तक इस दीन में तब्दीली नहीं आ सकती, जब भी कोई यजीद खड़ा होगा, कोई हुसैन उस दीन को बचाने के लिए खड़ा जरूर हो जाएगा। ये जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिलों में कयामत तक आने वाली इस उम्मत के दिल में इमाम हुसैन ने जो एक दर्श दिया, इमाम हुसैन ने तमाम लोगों के दिलों में एक जो दीन रिसालत को बचाने के लिए, दीन रिसालत की हिफाजत की एक कैफियत, एक जज्बा जो हुसैन ने तमाम लोगों के दिलों में डाला, यही इमाम हुसैन की जीत है। यही इमाम हुसैन को जीत मिली है। क्योंकि इमाम हुसैन चाहते थे दीन में तब्दीली ना आए, और दुनिया शाहिद है, दुनिया शाहिद है, सारे लोग जानते हैं कि यजीद जैसा चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हुसैन चाहते थे वो हुआ। क्योंकि लड़ाई फिक्र थी, लड़ाई फिक्र थी, लड़ाई फिक्र की थी, और फिक्र हुसैन की आगे बढ़ी। लड़ाई फिक्री थी, फिक्र हुसैन की आगे बढ़ी। यजीद की फिक्र कुछ और थी जो वही रह गई। हुसैन चाहते थे कि मेरी फिक्र आगे बढ़े, मेरे मुस्तफा का जो दीन है उसमें कोई तब्दीली ना आए, और दुनिया शाहिद है, लोग इस पर गवाह है कि यजीद जो चाहता था वो कभी ना हुआ, जो हुसैन चाहते थे वो होके रहा। दीन में कोई तब्दीली जो नहीं आई, यही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की असल लड़ाई और यही जीत है। समझ में आ रही बात आपको? हमने बहुत ज्यादा अपने एतबार से कोशिश किया आपकी फहम फिरासत से हम करीब करें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लड़ाई कोई शख्सी नहीं थी जनाब, कोई जाति नहीं लड़ी थी, कोई जाति लड़ाई नहीं थी। यजीद ने इमाम हुसैन की जमीन नहीं अड़पनी थी। एक फिक्री लड़ाई थी, दीनी लड़ाई थी, ये मजहब मुस्तफा को बचाने की लड़ाई थी, ये दीन को बचाने की लड़ाई थी, कानून को तहरीफ, कानून शरीयत में तहरीफ ना होने की लड़ाई थी, कानून दीन में कोई इसी तरह की कोई तब्दीली ना होने पाए, ये वाली लड़ाई थी। इसी वजह से, और ये लड़ाई इमाम हुसैन इस तौर पर जीते कि जैसा यजीद चाहता था वैसा नहीं हुआ, जैसा हुसैन चाहते थे वो हुआ। जैसा हुसैन चाहते थे, वो क्या चाहते थे? दीन में कोई तब्दीली ना हो, और दीन में अल्हम्दुलिल्लाह कोई तब्दीली नहीं हुई। आज दीन जिस रूप, जिस रंग के साथ, जिस बहार के साथ, जिस रोगन रंग बहार के साथ आप देख रहे हैं, या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इमाम हुसैन और उनके साथ आने वाले तमाम रफ़क़ा का सदका है कि इमाम हुसैन ने तमाम लोगों तक, क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के दिलों तक एक बेहतरीन दीन मुंतकिल करने का जरिया इमाम हुसैन बने। याद रखिए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर इमाम हुसैन चाहते तो क्या करना था? इमाम हुसैन अगर चाहते, मैंने कहा था, एक सवाल था मेरा कि इमाम हुसैन अगर जबानी बैयत कर लेते, दिल से ना करते यजीद की बैयत। एक सवाल ये
کہ دل سے نہ کرتے, زبانی کر لیتے, کیا ہو جاتا, کم سے کم یہ لڑائی نہیں ہوتی, اتنے سارے لوگ شہید نہیں کیے جاتے. مگر امام حسین نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب سنیں آپ. ایک چیز اور, ایک بات اور ہے, اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اس وقت مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی تھی, کیا ضرورت تھی یہ حسین نہیں لا رہے تھے, بیعت نہیں کر رہے تھے یہ حسین, باقی سب تو بیعت کر رہے تھے نا, پھر کیوں؟ یزید کو پتا تھا, یزید کو معلوم تھا, سب ایک طرف, نبی کا نواسا حسین ابن حیدر ایک طرف, یہ حسین نہیں ہے, یہ جو دین مصطفیٰ آیا ہے یہ چلتا پھرتا دین کا نام حسین ہے, چلتی پھرتی شریعت کا نام حسین ہے, یہ جو حسین ہے یہ زندہ قرآن ہے, یہ جو حسین ہے یہ حضور کی لائی ہوئی شریعت کا نام حسین ہے. گویا حسین کی بیعت اس لیے ضرورت تھی, حسین کی بیعت یزید اس لیے چاہتا تھا کہ اگر امام حسین بیعت کر لیتے ہیں, اگر نبی کا نواسا حسین ابن حیدر بیعت کر لیتے ہیں, تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر سارے لوگ میرے ہاتھ بیعت کریں گے, پھر جیسی مرضی میں ویسا کروں گا, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب یہ سمجھو کہ حسین ابن علی کی بیعت, امام حسین کی بیعت یزید کو کیوں درکار تھی, آخر کیوں ایسا یزید چاہتا تھا, یزید کیوں چاہتا تھا ایسا؟ امام حسین, ہمارا یہ سوال تھا کہ امام حسین آخر زبانی بیعت کر لیتے, دل سے نہ کیے ہوتے تو کم سے کم اتنا جو سانحہ ہوا, یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا, یہ جو تاریخ اسلام کا یہ المناک اور دردناک واقعہ ہے کربلا کا, یہ نہ ہوتا. آخر ایسا کیوں نہیں ہوا, امام حسین نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب سنو. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ زبانی بھی اگر بیعت کر لیتے, دل سے نہ کرتے, اگر زبانی بھی کر لیتے, یزید کا کیا منشا, یزید کی کیا منشا تھی, یزید کا کیا مقصد تھا, دین مصطفیٰ میں تحریف ہو, یزید کا کیا مقصد تھا, قرآن میں تحریف ہو, یزید کا کیا مقصد تھا, مصطفیٰ کی شریعت کی پامالی کی جائے, یہ یزید کا مقصد تھا. اگر امام حسین یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے, اگر امام حسین یزید کے ہاتھ بیعت کر لیتے, اور پھر یزید اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ہر دن دین مصطفیٰ میں تبدیلی کی کوشش کرتا, آج ناجائز چیز کو جائز قرار دیتا, کل جائز چیز کو ناجائز قرار دیتا. اگر کوئی شخص سوال کرتا تو یزید کے پاس ایک دلیل ہوتی, اے لوگو تمہیں کیا تکلیف ہے, اگر میں کچھ کر رہا ہوں تمہیں کس چیز کی تکلیف ہے, ارے جو دین لے کر آئے ان کا نواسا میرے ہاتھ پہ ہاتھ دیے بیٹھے ہیں, تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے, میں نے ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا, تمہیں کیوں دقت ہو رہی ہے, میں نے نماز کی فرضیت میں تخفیف کی, تمہیں دقت کیوں ہو رہی ہے. جب حسین ابن حیدر, جب نبی کا نواسا وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے گھر سے دین پھیلا, جن کے گھر دین بنا, جن کے گھر اصول دین ترتیب پائے, جن کے گھر شریعت کے قوانین ترتیب پائے, جن کے گھر شریعت کے ضوابط ترتیب پائے, وہ تو میرے ہاتھ دیے بیٹھے ہیں, تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے اگر میں شریعت دین میں کوئی تبدیلی کر رہا ہوں. یاد رکھو, امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے تو یزید ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا, کوئی اعتراض کرتا تو یزید کہہ دیتا, جس کے گھر سے دین پھیلا, جس کے نانا دین لے کر آئے, وہ حسین تو میرے ہاتھ دے کر بیٹھے ہیں, ہم نے جائز کر دیا, اگر حسین کو اعتراض نہیں ہے تو تم کیوں اعتراض کرتے ہو, میں نے اس چیز کو ناجائز کر دیا, میں نے شراب کو جائز کر دیا, تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے, جن کے گھر سے دین پھیلا, جن کا نواسا حسین ہے, وہ تو میرے ہاتھ دیے بیٹھے ہیں, وہ تو کچھ نہیں کہتے, تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. امام حسین کی ذات ایسی تھی, یزید کو پتا تھا اگر کوئی ڈٹ کے مقابلہ کر سکتا ہے, اگر میری فکر کا انکار کوئی ڈٹ کے کر سکتا ہے تو وہ حسین ابن حیدر ہے, اگر میری کسی طرح کے قانون میں کسی طرح کے کوئی اگر بیچ میں آ سکتا ہے, کوئی اگر بیچ میں حائل ہو سکتا ہے تو وہ حسین ابن حیدر ہے. اگر میں دین کو پامال کرنے کی کوشش کروں تو حسین ابن حیدر آئیں گے, اگر میں قرآن کی تحریف کی کوشش کروں تو حسین ابن حیدر آئیں گے, اگر میں دین مصطفیٰ میں کسی طرح کی تبدیلی کی بات کروں تو حسین ابن حیدر آئیں گے. اسی لیے کوشش کرو اے یزید, کوشش کرو حسین ابن حیدر ایمان لے کر آ جائے, پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ تم جو کرو گے کوئی انگلی اٹھائے, تم جو چاہو گے جائز کر دو گے, تم جو چاہو گے ناجائز کر دو گے, یعنی دین مصطفیٰ دین مصطفیٰ نہیں, یزید تمہارا دین بن جائے گا, بس حسین کو اپنا لو, بس حسین کو تم حسین کی بیعت لے لو, پھر دین میں جو مرضی تو تم رنگولیا کھیلو. اب یزید یہ چاہتا تھا, مگر امام حسین اپنے وعدے پر رہے. امام حسین نے اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا, ہم اس دین متین کو بچا کر رہیں گے, ہم اس دین متین پر قیامت تک آنے والی امت کے دل میں, جس امت کے دل میں یہ ایمان روشن ہوگا, ان تمام کے دلوں پہ اس حسین کا پہرا رہے گا. جب بھی کوئی یزید کھڑا ہوگا اور یہ دین کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا, امام حسین نے ایک ایسا درس دے دیا, امام حسین نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے دل میں ایک ایسی کیفیت ڈالی
डाल दी। इमाम हुसैन ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के दिल में एक ऐसा जज्बा दाखिल कर दिया इमाम हुसैन ने, गोया इमाम हुसैन ने एक दर्द दे दिया तमाम लोगों के, क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के खून में गुट्टी में ये बात डाल दी कि ऐ लोगों याद रखो, जब भी इस दीन की तरफ कोई यजीद आंख उठाने की कोशिश करे उनकी आंखें निकाल देना। ऐ लोगों याद रखो, मुस्तफा की शरीयत में जब भी कोई उंगली उठाने की कोशिश करे तुम हुसैन तुमको ये दर्द देता है, उनकी उंगली काट डालना। मुस्तफा की शरीयत में किसी तरह की कोई तब्दीली ना आने देना। ऐ लोगों, क़यामत तक लोगों के लिए हुसैन ये पैगाम देना चाहता है, याद रखना जब भी कोई यजीद उठेगा मुझ जैसा हुसैन कोई ना कोई जरूर तैयार होगा। और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के दिल में इमाम हुसैन ने इश्क़ रिसालत का वो सूर फूका और दीन के तय मोहब्बत की वो बीज बोई इमाम हुसैन ने। गोया के इमाम हुसैन ने एक दर्स ऐसा दिया कि क़यामत तक आने वाले यजीद आते रहेंगे मगर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि दीन मुस्तफा की तरफ आंख उठाकर देखे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है दीन मुस्तफा की तरफ उंगली उठाए। पता है कि अगर मैं एक यजीद अगर बनता हूं तो पता नहीं कितने हुसैन बनकर मेरी उंगली मरोड़ देंगे। अगर मैं यजीद बन के अपने इस दीन की तरफ आंख उठाता हूं तो पता नहीं कितने हुसैन होंगे जो मेरी आंख निकाल लेंगे। अब किसी यजीद के अंदर ये हिम्मत नहीं दीन मुस्तफा में किसी तरह की कोई तब्दील कर पाए। अब किसी यजीद के अंदर ये कोई हिम्मत नहीं कि दीन मुस्तफा के अंदर किसी तरह की कोई तहरीफ कर पाए। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत तक आने वाले हर हुसैनियों को ये दर्स दे दिया कि जब भी कोई यजीदी पैदा होगा वहां हुसैन जरूर मिलेगा तुमको। इमाम हुसैन ने जो तमाम उम्मत मुस्तफा के दिल में ये जो एक जज्बा डाला, ये जो इमाम हुसैन ने तमाम लोगों के ज़हन में ये फिक्र डाली, ये फिक्र, यही फिक्र डाल पाना, इमाम हुसैन का ये फिक्र डालने में कामयाब हो जाना, यही मैदान करबला में इमाम हुसैन की जीत है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर चाहते तो करामत दिखला देते मगर नहीं, करामत नहीं दिखलाना है। क्यों? क़यामत तक आने वाले मेरे नबी की उम्मत को निगर बनाना है, उनको मजबूत बनाना है। मेरी अपनी जिंदगी को, इमाम हुसैन ने कहा कि मेरी अपनी जिंदगी को मेरे नाना के दीन को बचाने के लिए खुद आइडियल बनाना है। कोई ये ना समझे कि इमाम हुसैन ने, कोई ये ना कहे कि दीन लेकर नबी तो आए मगर उनके नवासे ने बचाया कहा, बचा के इमाम हुसैन ने बता दिया। अगर नबी अलैहिस्सलाम दीन लेकर आए हैं तो हुसैन ने उस दीन की पहरादारी की है। और इमाम हुसैन ने ऐसी पहरादारी की कि तमाम आशिकान रसूल मुहिब्बान अहले बैत के दिल में जो ईमान जगता है, जो ईमान रोशन है, उस ईमान के इर्द गिर्द इमाम हुसैन ने एक कैफियत और जज्बा का एक ऐसा पहरा डाल दिया कि अब कोई यजीद उस ईमान के करीब भटक भी नहीं सकता है, कोई यजीद उस ईमान के करीब जा भी नहीं सकता है, कोई यजीद सोच भी नहीं सकता है कि इस ईमान की तरफ नजर उठाए। ये जज्बा किसने डाला, ये कैफियत किसने डाली, ये दर्स किसने दिया? बेशक उस हुसैन इब्न हैदर ने दिया, बेशक उस नवासा रसूल ने दिया। इमाम हुसैन ने जो एक फिक्र दी, यही इमाम हुसैन की लड़ाई थी। और इस फिक्र को देने में इमाम हुसैन कामयाब हुए। तो ये जीत इमाम हुसैन की हुई, कोई यजीद की जीत नहीं हुई। बात समझ में आ रही है? आपने वाकयात, ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के पास आपने सुनी है। एक बार दुरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। याद रखें, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक बात ये समझने की है, हमने आपको इस तकरीर में अब तक ये कम से कम समझा दिया कि यजीद को सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन की बैयत की जरूरत थी। सही है? सिर्फ इमाम हुसैन की, क्योंकि यजीद जो चाहता था अगर इमाम हुसैन बैयत कर लेते तो फिर कोई भी शख्स उंगली नहीं उठाता, यजीद जो चाहता सो करता। अब सवाल ये कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब, अच्छा ये इमाम हुसैन को भी पता था कि यजीद को सिर्फ मेरा खून चाहिए, फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चाहिए था कि सबसे पहले मैदान में चले जाते। कभी अली अकबर को भेज रहे, कभी हजरत कासिम को भेज रहे, कभी हजरत कैस को भेज रहे, कभी हजरत हुर को भेज रहे, अलग अलग, कभी अपने बेटे को, कभी भतीजे को, कभी भाई अब्बास को, अलम बरदार को। इमाम हुसैन पहले चले गए होते, आखिर इमाम हुसैन आखिर में क्यों गए? समझ में आ रही बात? इमाम हुसैन आखिर में क्यों गए? पहले चले गए होते। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए होते, इमाम हुसैन नहीं गए, मगर इसकी वजह क्या है? इमाम हुसैन ये बतलाना चाहते थे, इमाम हुसैन एक सबक देना चाहते थे। इमाम हुसैन बतलाना चाहते थे, ऐ यजीदियों याद रखो, मैं सिर्फ हुसैन इब्न हैदर नहीं हूं, मैं उस शख्स का नवासा हूं जो दोनों आलम की रहमत है।
जो दोनों आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं, अगर तुम्हें सिर्फ खून चाहिए ना, या तुम्हें अगर मेरा इम्तिहान चाहिए कि मैं दीन मतीन की तय किस कदर पुख्ता यकीन रखता हूं, मैं दीन मुहम्मदी पर अपने नाना के दीन पर किस तरह साबित कदमी के साथ हूं, अगर तुम्हें यकीन के लिए कुछ चाहिए ना, तो ये लो अली असगर का खून और यकीन कर लो, ये लो अली अकबर का खून यकीन कर लो। याद रखो मैं रहमत दो आलम का नवासा हूं, अब भी मैं अली असगर की शहादत को भूल जाऊंगा। मेरी बात मान जाओ, दीन मतीन में कोई तब्दीली मत लाओ, दीन मतीन की तहरीफ से बाज आ जाओ, दीन मतीन के कवानीन को छेड़खानी से बात, दीन मतीन की कवानीन में छेड़खानी से बाज आ जाओ। ऐ यजीदियो, दीन मतीन की तब्दीली में दीन मतीन की तब्दीली से बाज आ जाओ। तुम्हें अगर कोई खून चाहिए तो ये अली असगर का खून लो, तुम अब भी बाज आ जाओ, मैं रहमत दो आलम का नवासा हूं, तुम्हें माफ कर दूंगा। अब भी नहीं समझ में आया, अली अकबर का खून ले लो। याद रखो अब भी अगर तुम बाज आ जाते हो तो मैं रहमत दो आलम का नवासा हूं, अब भी माफ करके गले से लगा लूंगा। नहीं अगर समझ में आ रहा है, अब भी तुम्हें इम्तिहान लेना है, तुम कैसा करो, मेरे भतीजे कासिम का तुम खून ले लो। अब भी तुमको अगर समझ में आ रहा है तो आ जाओ, वापस आ जाओ, दीन मतीन की तब्दीली से बाज आ जाओ, मुस्तफा की शरीयत की पामाली से बाज आ जाओ। अब भी मैं तुम्हें रहमत आलम का नवासा हूं, अब भी मैं तुम्हें माफ करके सिरे से लगाने को तैयार हूं। इससे भी नहीं समझ में आ रहा है, भाई अब्बास अलमबरदार का तुम खून ले लो, अब भी माफी मांग लो, अब भी तुम बाज आ जाओ, हम तुम्हें माफी मांगने को तैयार, हम तुम्हें माफ करने को तैयार है, हम तुम्हारे साथ सारी रंजिशें भुलाने को तैयार है। अब भी बाज आ जाओ, मैं रहमत दो आलम का नवासा हूं। इमाम हुसैन एक एक को भेजकर यजीदियों को समझाना चाहते थे। याद रखो हुसैन इब्ने हैदर वो है पूरा कुंबा लुटा देगा, लेकिन दीन शरीयत में, इस दीन मतीन में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आने देगा। किसी भी सूरत में हुसैन इस दीन में तब्दीली कभी भी नहीं आने दे सकते हैं। इमाम हुसैन अलग अलग लोगों को भेज रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यजीदियों को समझा पाए कि अगर तुम इम्तिहान लेने के लिए आए हो तो ये इम्तिहान ले लो, मगर कभी भी ये ना सोचना कि मैं दीन मतीन से हट जाऊंगा। तुम मेरे बेटे को शहीद करने के बाद ये मत सोचना कि मैं कहीं ऐसा हो जाए कि मेरा कदम डगमगा जाए और मैं तुम्हारे हाथ बैत कर लूं। तुम मेरे भाई अब्बास को शहीद कर दोगे तो हुसैन से ये ना हो सकेगा कि डगमगा जाए और वो तुम्हारे हाथ में बैत कर ले। तुम मेरे बेटे अली अकबर, जवान अली अकबर को शहीद कर दोगे, हुसैन से ये ना हो सकेगा कि वो किसी वजह से वो किसी तरीके से घबरा के तुम्हारे हाथ पे बैत कर लेंगे। तुम मेरे भतीजे कासिम को शहीद कर दोगे, हुसैन से ये कभी ना होगा कि वो किसी तरीके से डगमगाए और तुम्हारे हाथ पे बैत कर ले। याद रखो ये हुसैन इब्ने हैदर है, ये नबी का नवासा है, तुमको जिसका खून चाहे ले लो। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, माफी मांगो, बाज आ जाओ, मैं रहमत दो आलम का नवासा हूं, तुम्हें माफ करके गले से लगाने को तैयार हूं। अब भी वक्त है। इमाम हुसैन यही वजह है कि इमाम हुसैन सबके आखिर में गए कि शायद ये कमबख्त अब मान जाए, शायद ये बदबख्त अब समझ जाए, शायद ये बदनसीब अब किसी तरीके से काबू में आए, शायद ये बदनसीब अब समझ जाए इस दीन मतीन की कुर्बानी को, मगर नहीं माने। आखिर में इमाम हुसैन को खुद जंग में जाते हैं और खुद जंग में गए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जाकर इमाम हुसैन ने बतला दिया कि ये दीन मतीन, इसके लिए जरूरत पड़ी तो एक हुसैन नहीं, पता नहीं कितने हुसैन शहीद हो जाएंगे, और जितने हुसैन होंगे उनके जितने अली अकबर और अली असगर होंगे, उनके जितने कासिम और अलम बरदार होंगे, सबको एक एक करके अगर मुझ जैसा हुसैन होगा इस दीन में तो कुर्बान कर देगा, मगर दीन में किसी तरह के दीन को लेकर कभी किसी भी मामले में समझौता हुसैन कभी नहीं कर सकता है। इमाम हुसैन ने एक जबरदस्त कैफियत दी लोगों के दिलों में, कयामत तक आने वाली हर उम्मत के दिल में एक बेहतरीन मजबूती का सूर इमाम हुसैन ने फूका, और दीन में किसी तरह की कोई तब्दीली को ना मानकर इमाम हुसैन ने तमाम लोगों के ईमान को ताजा कर दिया। और याद रखिए जब जब मुहर्रम का महीना आएगा तब तक इमाम हुसैन की याद मनाकर लोग अपने ईमान को ताजा करेंगे, तब तक अपने दिलों को लोग दीन के तय, अपने दिलों में दीन की मोहब्बत को मजबूत करेंगे, तब तक कवानीन मुस्तफा को अपने अंदर मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जब और लोग शरीयत पर बहुत ज्यादा इश्क व मोहब्बत के साथ अमल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।